have reached your destiny. Can you hear the engine? I mean, अरे भाई भैया सिग्नल भी दिया था, सिग्नल 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 दिया था, कहाँ से आ रहे हो? So the ideal RPM range it fires is that देखा कैसा रुक गया, that's stalling and this needs an ECU update. वो उस RPM में रह नहीं पाता है and then it stalls all of a sudden, and this happens when you're in city rides, traffic में and all, so it becomes hard for you to manage. क्योंकि ये फर्स्ट सेट ऑफ बाइक्स है, इनमें प्रॉब्लम्स आना इज कॉमन थिंग. So for a short rider it is important for you to check the high areas and land your legs accordingly. So tactics भी बहुत important है when you're riding this bike. See, when I fire the acceleration it goes like hell. That is what I like about this bike. It's so much competitive with KTM 250 and इसका adventure looks are so appealing that you can race through the city areas, traffic areas, but stop traffic होता है ना, when it is completely मतलब कोई जगह नहीं है जाने के लिए, that is kind of hard for you to manage. See, but ऐसे traffics where you can slide and glide through, it's so amazing to rev your acceleration through those places. ऐसे stop traffic में थोड़ा मुश्किल होती है, but moving traffic में you can easily manage to see like that. Now let's see again. Like that. Yeah baby, just like that. अगर ऐसे लोग बीच में आ जाते तो you definitely have to stop, कुछ कर ही नहीं सकते. Gliding through is so easy, जो आप लोगों को हिमालयन में नहीं मिलेगी. बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट कमिंग जो है, ये थोड़ा शॉर्ट बोर इंजन है. लॉन्ग बोर इंजन इट इज़ यूजफुल इन ऑफ रोड्स एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ऑफ रोड बाइक. बट यू लव दिस बाइक इन गलीज एंड लॉन्ग टूरिंग रेंज. वहाँ पे बहुत मज़ा आता है इस बाइक के साथ. Being a short rider, it is kind of hard for me to manage through all these areas, but I kind of have experience with FZ. वो भी थोड़ा height नहीं पहुँचता था when I was in B.Tech and all, but then right now थोड़ा height बढ़ गया मेरा 5'4" से 5'5", 5'6" के बीच में. with 1 inch का shoes I can easily manage this bike so easily that I can glide through any kind of traffic, man, like this. पता है इसका शॉर्ट कमिंग बहुत शॉर्ट कमिंग सर, ये जो पावर फर्स्ट गियर में प्रोवाइड नहीं कर पाता है, दैट इज़ सो डिसअपॉइंटिंग. यू विल फील दैट, पर समटाइम्स जब आदत हो जाती है यू काइंड ऑफ एडजस्ट टू दैट. सो वो है. आई एम जस्ट लविंग द एक्सेलरेशन पार्ट. मिड रेंज बहुत देता है यार. मिड रेंज इज सो गुड इन दिस बाइक. क्रूजिंग के लिए 120 किलोमीटर्स इज लाइक ऐसे ही अप्रोच कर देता बाइक. 114, 116, 118, 120 ऐसे इट ईजिली ग्लाइड टू 120 किलोमीटर्स पर आवर. एंड उसके बाद से ग्रेजुअली मतलब एक लीनियर फॉर्म में, लीनियर ग्राफ में 140 तक पहुंच जाता है. सुचित्रा इज़ वन एरिया जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती है. यहाँ पे रोड एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है. गवर्नमेंट प्लीज़ थोड़ा रोड एक्सटेंड कर दो. सी, you need to practice a little bit for 5 people.
At first you'll feel very uncomfortable, you'll feel discomfort with the seats क्योंकि seats are not that comfortable. I have added jelly cushion to this bike. अभी बहुत ही soft हो गया है seat and I have no problem for long rides also. Second and third gear तुम लोगों को पहुंचा देगा 68 एंड देन 100 आराम से पहुंचा देगा. लेट्स ट्राई दैट राइट नाउ गाइस. वेयर योर क्या बोलते हैं हेलमेट एंड ऑल द सेफ्टी गियर्स एंड देन राइड लाइक दिस. ये बहुत ही डेंजरस बाइक हो सकती है बिकॉज द वेट इज़ 188 kgs एंड इफ़ यू lose the balance na, for short riders it is very hard to manage, so keep that in mind when you're riding. There is one more problem. I have more than 3 liters in the 3 तो रिजर्व में ही रह जाता है. more than 5 liters in this bike, but then it shows you the sign because मैंने साइड स्टैंड पे इंजन को चालू किया था. एंड ये सारे बाइक्स में जावा में भी है इशू एंड एसडी में भी वही इशू है. तुम्हारा बाइक का बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए. दैट्स व्हेन योर फ्यूल का इंडिकेटर सही दिखाता है, वरना इट शोज लाइक दिस ओनली. क्लच, ऐसे ट्रैफिक में क्लच इज़ रियली हार्ड. मुझे अगर एफजी का भी क्लच हो ना आई कैन मैनेज, बट इसका जो क्लच है इट्स वेरी टाइट. Going through vehicles is so easy, like that and that and that and that. And yes, मैंने अभी almoस्ट 3 to 4 किलोमीटर चलाई है ना. सो द हीटिंग इशू, जो वो आगे का फ़ैन घूमता है, जो कूलिंग सिस्टम इसका, सो मतलब वो राइट फुट पैक पर ऑलरेडी हीट डिसिपेशन स्टार्ट कर दिया है. एंड माई राइट लेग इज़ ऑलरेडी फीलिंग दैट हीट. लेफ्ट लेग पे कुछ नहीं है, नथिंग एट ऑल. I got some comments from few group members. They were saying that after 2000 kilometers the heat dissipation थोड़ा कम हो जाता है, and it is common in bikes जिनमें ऐसा कूलिंग सिस्टम है. तो that is one more thing. अगर कंपनी उस हीट डिसिपेशन को अंडर दी बाइक कर दे, then this bike is so perfect for city rides as well. And one more thing, ये क्लच भी थोड़ा ढीला करना पड़ेगा. That's when this bike will become a city ride. जितना ये प्रोड्यूस करता है टॉर्क एट फर्स्ट गियर एंड पावर, दिस इज़ वेरी लेस कंपैरेटिवली टू एनी अदर बाइक. ऐसा फीलिंग आ रही है मेरे को. बट जैसे ही सेकंड गियर में पहुंच जाते हो, थर्ड गियर में, थिंग्स गेट टू चेंज एंड यू सी द पावर प्रोड्यूस करता है. टर्निंग्स के पास बसेस से शुड बी लिटिल केयरफुल. दिस इज़ स्पेशली फॉर शॉर्ट राइडर्स जो मतलब टर्निंग्स पे ओवरटेक करना चाहते हैं, बिकॉज देर इज़ दिस स्लैंट पार्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट. अगर सडनली बाइक रोकना पड़े यू विल गेट इम्बैलेंस. तो इतना जगह है तो ठीक है, मार सकते हो. एंड माइलेज कैसा रिएक्ट करता है इस बाइक के साथ व्हेन यू रिव द इंजन लाइक कोर. तुम्हें देगी 25 किलोमीटर पर लीटर इफ़ यू आर रिविंग योर इंजन लाइक दिस, एक्सिलरेटिंग इन शॉर्ट रेंजेस एंड ऑल. सो विद इन द सिटी अगर तुम ऐसे रिव करते हो टू ग्लाइड थ्रू द ट्रैफिक, इट गिव्स यू वैली 24-25 किलोमीटर पर लीटर. एंड देन इफ़ यू आर
Cruising normally you'll get around 30. I mean, there is a large difference with mileage. Okay, you have to, if you want mileage, then you have to ride it very very smoothly. My leg barely touches. मैं अभी ये स्नीकर्स वाला शूज़ पहना हूँ एंड मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. आई एम प्लानिंग फॉर बूट्स. वो राइजो का 9 इंच का बूट्स आए हैं, बट व्हेन आई गेट द 10 इंचेस बूट देन आई विल एक्चुअली राइड विद दोज केयर. For now, let's just try our best to not fall down. Guys, if you are 5.5, it's not that hard to manage. You need to have the skill, okay? Your skill and then confidence to ride the bike in these areas. Okay. Congratulations, brother. You have reached your destiny. Can you hear the engine? I mean, अरे भाई भैया सिग्नल भी दिया था. सिग्नल दिया था. कहाँ से आ रहे हो? सिग्नल भी दिया. आप कहाँ से आ रहे हो? ఇప్పుడు వేసిన స్పీడ్ బ్రేకర్ ఎక్కినప్పుడు వేసిన మీరు రైట్ నుంచి ఎందుకు కట్ చేసారు అన్న? నేను సిగ్నల్ ఇచ్చినా కూడా ఏం కాలేగా మీకు? సిగ్నల్ వేసిందా లేదా? అక్కడ స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర సిగ్నల్ వేసిన, మీరు గుద్దిరు. మీరు రైట్ నుంచి కట్ చేస్తున్నారు, పైగా నేను ఇటు వచ్చినా కానీ. నేను ఇంకా మీకు ఏమైనా తగిలిందని అడుగుతుంటే మీరు ఇంకా బూతులు మాట్లాడుతున్నారు. తప్పు నేను చేసిన. సిగ్నల్ కూడా వేసిన తర్వాత మీరు అన్న మీరు చూసిరు అక్కడ సిగ్నల్ వేసినా కదా. అరే ఎట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు భయ్? సైగ్గాడు ఉన్నాడు అసలు. इसको जहाँ पे भी लगी मस्त लगी.